Hello everyone, this is Poonam and welcome to the Share Knowledge Education. So in the segment of Indian polity, we have discussed many acts in the ground rule. So today we will discuss the Government of India Act 1935. We have discussed earlier Government of India Act 1909. Government of India Act 1909, that was the Model Minto reforms. So that was, we said at that time that was the first milestone towards making the responsible government of making the responsible government in India. That we have already discussed, but today we will discuss the Government of India Act of 1919. This is also a very detailed document with so many provisions. So Government of India Act 1935 was called the second milestone towards making the responsible government in India. So that is the first thing we should keep in our minds. So then next we will do the features of this act. So this act, Government of India Act 1935, it gave so many provisions. 10 provisions we will discuss. Very important. First is All India Federation. We will discuss later. We will just note down what were the points. It abolished diarchy. You know there was a system of diarchy in provinces. So that was a big thing it did. This act also gave the provision for adopted the diarchy in center. प्रोविंसेस की तो हटा दी गई डायरकी, लेकिन डायरकी को अडॉप्ट किया गया इन द सेंटर. डिटेल में देखेंगे क्या होता है. इसके साथ साथ ऑल इंडिया काउंसिल, दैट वाज, ये भी रिमूव की गई, दैट वाज कैंसल्ड. ये जो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविजन दिया गया था, उसके साथ साथ bicameralism was adopted for the provinces. We will discuss later how many provinces were given the status of bicameralism. And then communal representation, इसको भी एक्सटेंड करने का प्रोविजन दिया गया. हालांकि हम बाद में पढ़ चुके हैं कि उसको कैंसिल किया जाता है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, बट देयर वाज फॉर द वुमेन एंड लेबर आल्सो अमंग विद शेड्यूल कास्ट. तो ये प्रोविजंस थे, और भी बहुत सारे प्रोविजन थे. आरबीआई वाज सेट अप, देन देयर वाज प्रोविजन फॉर द सेटअप ऑफ like we were having the Federal Public Service Commission, so Provincial Public Service Commission or Joint Public Service Commission was also there. इसके साथ साथ extended the franchise and the establishment of Federal Court. तो ये कुछ चीजें इसमें की गई. तो Government of India Act 1935, in short we have discussed the things. तो अभी इसको हम डिटेल में देख लेते हैं what actually happened. So first thing was done, that was All India Federation. So this act gave the provision for setting up of the All India Federation, means the provinces, the British provinces were there at that time, and they were also having some princely states. So they wanted to make the country, the whole area in which there were provinces and princely state as a unit, that is All India Federation. So ये इसमें किया गया, but it did not happen because जो princely states थी, they never joined the federation. इन्होंने ये फेडरेशन
ज्वाइन नहीं की अंटिल द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बाद में जब देश आजाद हो गया तब प्रिंसली स्टेट्स जो थी उन्होंने एज अ यूनिट फॉर द कंट्री पाकिस्तान और द इंडिया, तब उन्होंने जो है वो अपनी ऑटोनॉमी सब्ज्यूम की। लेकिन उससे पहले दे नेवर जॉइंड द फेडरेशन जो ब्रिटिश इंडिया चाहती थी, लाइक दे वर हैविंग ऑलरेडी द प्रोविंसेस, और प्रिंसली स्टेट्स नेवर ज्वाइन, तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं हो पाया बाद में। बट दिस एक्ट गेव द प्रोविजन, तो इस एक्ट से हालांकि बाद में ये चीज यूज भी होती है कि एज ए कंट्री वी वांट द नेशन और बाय ज्वाइनिंग ऑल द प्रिंसली स्टेट्स एंड जितने भी उस समय जो अलग अलग ऑटोनॉमी वाले एरियाज थे। दूसरी बात की गई अबॉलिश द डायरकी। हालांकि इसमें काफी सारे जो प्रोविजन दिए गए दैट वाज लाइक फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ये रेजिडुअरी। तो जैसे पहले हमने बात की थी कि प्रोविंसेस को कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए थे, तो इसी तरह से ऑल इंडिया फेडरेशन में भी उन्होंने, जैसे आज के टाइम पे इंडिया एज ए यूनिट एज अ फेडरेशन तो नहीं कहेंगे, इट इज अ यूनिटरी स्ट्रक्चर, बट उसी बेस पे ये चीज थी कि फेडरल लिस्ट जो थी दैट वाज विद द सेंटर। फेडरल लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स थे दीज सब्जेक्ट्स वर विद द सेंटर। प्रोविंशियल लिस्ट में जो प्रोविंसेस के पास थे या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थी और ऑर्डिनरी पावर्स थी दीज वर विद द वायसराय। इसमें 58 आइटम्स थी और प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थी। हालांकि ये बाद में हो नहीं पाया था, तो दैट वाज द फर्स्ट प्रोविजन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दैट वाज द ऑल इंडिया फेडरेशन। सो नेक्स्ट थिंग, so next is they abolished the diarchy in provinces. प्रोविंसेस में पहले हम पढ़ चुके हैं कि देयर वाज अ डायरकी। इसमें जो हम प्रोविंशियल लिस्ट की बात कर रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स थे दैट वाज फर्दर डिमार्केटेड एज अ ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती थी कोई भी लॉज, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसमें एग्जीक्यूटिव जो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉज बनाती थी विद गवर्नर। बट अभी जो है वो डायरकी वाज अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस। ये जो अबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, तो इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई। इट इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जैसे कि आज स्टेट्स के पास है, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं दे हैव द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एक चीज ये की गई and then adopted hierarchy in center। लेकिन सेंटर में क्या किया गया, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे they were divided into transferred and reserved subject, but जो ये सिस्टम था that was never came into effect, ये कभी यूज नहीं किया गया, लागू नहीं हुआ ये चीज की गई। याद रखना ये बात कि अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि दे अडॉप्टेड डायरकी इन सेंटर, क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यूज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज व्हाई द पॉइंट इज मेड क्लियर। स्टेट्स के लिए क्वेश्चन आता है दे अबॉलिश द डायरकी इन द स्टेट्स, देन इट्स राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, बट द क्वेश्चन इज दे अबॉलिश डायरकी इन द सेंटर। इसको जरूर पढ़ लेना कि सेंटर के बारे में पूछा गया है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज दे अडॉप्टेड डायरकी इन द सेंटर। फाइन। द नेक्स्ट थिंग, fourth is they abolished ऑल इंडिया काउंसिल या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया। दिस वाज काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको एक एडवाइजरी बॉडी दी गई जो काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रही थी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड मोर पावरफुल, राइट? सो दिस वाज, एंड देन bicameralism, fifth point is, पहले हमने पढ़ा था bicameralism was adopted in center, but now bicameralism adopted in provinces. provinces में इसको adopt किया गया। At that time there was 11 states, out of them in 6 states bicameralism was introduced, means दो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और काउंसिल ऑफ स्टेट आरटीआई, कुछ स्टेट्स में उसी तरह से वहां इसको अडॉप्ट किया गया। जो 6 स्टेट्स थी, दीज वर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। लेकिन कुछ ना कुछ इनमें रिस्ट्रिक्शंस थी, राइट? बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस। आप बोलो कि कंप्लीटली इन्होंने अपर हाउस लोअर हाउस को अपनी तरह से काम करने की फ्रीडम दी थी, देन इट इज नॉट ट्रू। They gave this provision with some restrictions. Next is communal representation. So Government of India Act 1935 we are doing, keep in mind. Next point is they extended communal representation. It gave the provision to extend the communal representation. हालांकि बाद में इसको वापस लिया भी गया था for the depressed classes who were included, scheduled caste, women, जो depressed classes थी at that time, laborer, जो worker, we can say workers. तो they gave the provision to extend the communal representation further. Next point is establishment of RBI, that is Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India establish किया गया उस टाइम पे to control money and credit, or money means currency, credit of the country. ट्रेड भी होता था उस टाइम पे, तो वो उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए एक आरबीआई भी एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले हम जान चुके थे, हमने इसको बोला था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, बट द एग्जैक्ट वर्ड इज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो पहले ही था, बट नाउ they included the provincial public service commission for the provinces, or the joint public service commission for 2 or more states, 2 or more provinces, right? तो ये काम 1935 के एक्ट में किया गया। एंड देन फ्रेंचाइजी, so they extend the franchising to the Indians. You know, अभी जो है वो 10% of the total population, they were granted, उनको भी मिल गए थे right, voting rights. 10% of the total population got the voting rights. That was the franchisee that was extended.
that were included some educated, some women. Okay, so ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Then is establishment of, there was the provision for the establishment of federal court that was set up in 1937. 1937 में फेडरल कोर्ट जो है दैट वाज एस्टैब्लिश. तो ये सारी चीजें इसमें की गई. ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए इन्होंने सोचा कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एक करके एक फेडरेशन यानी कि एक कंट्री बना दी जाए जिसमें कि हम रूल करें, ब्रिटिश इंडिया. तो ब्रिटिश वांटेड दैट एट दैट टाइम ऑल इंडिया फेडरेशन. दूसरा, डायरकी को प्रोविंसेस से हटा दिया गया, अबॉलिश कर लिया गया, लेकिन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर. नेक्स्ट थिंग वाज डन, काउंसिल ऑफ इंडिया 1958 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसका प्रोविजन था, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था. बट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट इज कैंसल्ड, इट वाज अबॉलिश्ड. बाइकैमरलिज्म जो था वो प्रोविंसेस में इसको एक्सटेंड किया गया. 6 प्रोविंसेस में वी हैव डिस्कस्ड बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस. उसके साथ फ्रेंचाइजी जो है दैट वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू द इंडियंस. अभी जो है वो 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट. पहले हमने जाना था कि कुछ एजुकेटेड या फिर कुछ पढ़े लिखे जो थे, प्रॉपर्टी थी जिनके पास, या फिर जो टैक्स पे करते थे, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोगों को वो वोटिंग राइट्स देते थे. बट नाउ दिस हैज बीन एक्सटेंडेड. एंड लास्ट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट. फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन किया गया, दैट वाज सेट अप इन 1937. So this Government of India Act 1935 is a very important document. क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. तो ये आपको पॉइंट्स हैं बने अलग से इसलिए नोट डाउन करवा दिए थे ताकि एक बार माइंड में इसकी पिक्चर बन जाती है तो लर्न करना इजी हो जाता है और रिटेन करना भी माइंड को आसान होता है. तो अभी के लिए इतना ही. सो वी विल मीट in the next video with the last act, the Government of India Act 1947, Indian Independence Act. तो उसके साथ हमारा ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला ये जो चैप्टर है इसमें किस तरह से इंडिया की जो प्री इंडिपेंडेंस पॉलिटी किस तरह से इवॉल्व हुई, दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो लास्ट लेक्चर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.